So something which which is very basic, sir will tell you. Okay. 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 Okay, students. First of all, as Ram sir have already told you that first of all, the basic understanding of all four quadrants, like first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. So, as you all know, that we are dealing with the particular understanding. First, I just want to narrate one particular story so that complete all 5 chapters or all 4 chapters that we are going to explore in this semester one, that will give you a one particular definition. Suppose if I take this particular chalk box, so it's a perfect. Imagine if this is a cube. If this is a cube, so what you have to think first of all, that is how this particular cube is get evolved. So the story will start from point. So as you all know that this is one particular point, this have their own importance, but the moment this point when joined with another point, you get one particular line. Clear? So this is one particular line joining between 2 points. Now I will be coming to this particular cube, imaginary cube, but later on after this line, if you join another line with this particular line in another plane, as you all know, there are 3 axes. So suppose if this is O, this is A, and this is another line which is joined with the same point. Now, same way, another point which is another line which is joined with this particular point and the C. So, means how many points you are having? You are having one as a origin point and three as a next points which are helping to make 3 lines. So now here, how many points you have? You are having one central point, 3 endpoints, and overall together you are having 3 lines. Now, the moment you join one line with another line, automatically, if I just uh, prepare one particular plane out of that, so what you will find that just because of one center and because of one point, when this point was joined with this another point, you got one line that is known as OA. Then another point, OB. You get second line. This is first line. This is second line. This is third line. So this is OC. This is third line. So keeping in mind that one central point and originating as a center as a origin, you are having one line at different axis, one line at different axis, one line at different axis. As you all know, that complete this thing. This thing is how much under three-dimensional axis you are already knowing x coordinate, y or z. Suppose if I extend this as a x, if I extend this as a y, if I extend this as a z. So the main understanding was, because you are having one particular line OA, another one particular line OB, you are getting this one particular plane. So story was started from point. Then because of these 2 lines, you got one particular plane. Because of now this plane, you will get another plane. This will be pure perpendicular. Uh, Parallel to this, then again parallel to this. So suppose this is P, this is Q. Same way, if you just originate this particular axis, so you will again draw parallel to this and parallel to this. So this is R. So means what this I am hatching, this is one particular plane. So because of one point, because of 2 lines OA and OB, you got this one particular plane known as OABP. Same way, another plane if I hatch with this particular point, another point if I hatch with this particular cross lines. So you are having these 3 planes as one center. Now assume that this is one particular cube. So what you will find, you are having this particular point as O, and this line is going here. So this is your height, this is your width, and this is your length. So overall, this is 3 planes. But under cube, there are how many surfaces? First is base, bottom. So bottom surface is known as base plane. Overhead plane means this is the base plane. This will lie at base. This is the overhead plane. This will just above parallel
to this plane. So this will be your overhead plane. Suppose if you are sitting in a room, so you can imagine that your particular floor where you are sitting or standing, that is known as base plane. Your ceiling or slab is known as overhead plane. Then all your four walls under which you have windows or doors, that will be knowing as your four planes. So four planes. So keeping in mind, you are getting ultimately six planes: one base plane, one overhead plane, and four different planes. So you're having six planes. So because of those six planes, now when you merge, you get one particular volume. So this is what you are starting right now from point, then you are originating towards line. Then because of two lines, you are originating to one particular plane. Then because of two planes of six planes, you will getting one particular volume. So I hope you get the one particular ideology or one particular basic fundamental that why we are studying this projection of point, then projection of line, then slowly after your CT1 we may start projection of planes, then projection of solid. So keeping in mind, you know that we are having this first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. So as per your question, if question says that you have to answer on the basis of first quadrant, so you will follow first quadrant rule. First quadrant rule, the basic fundamental will be, in short, if I explain, your particular plan will be here. Am I right, sir? Below the XY plane, and elevation will be here. And the moment when you will be going to draw with this particular type of network, then you will get here view or a right hand side view, or you can say LHS, na? LHS. So means keeping in mind, either you can project like this. So means if this is first angle, means you are having your base plane behind, but you're having third plane, then your particular this projection plane will be there. So you have to feel this as a transparent, but here you don't have to feel this particular projection plane as a transparent. So keeping in mind that you have to now explore on the basis of the understanding of planes. Laptop is best example. I'm just taking your laptop, open laptop as a base plane. So you just assume this as one particular axis. Now suppose this is going, this is a point O. If I originate one this particular center this, or one this particular center line like this, so this is the main axis. Suppose X, Y, and this is O. So keeping in mind that this is your open laptop, so if you place your finger here, suppose in space bar. So if this is your point, so it's auto understood that this particular point or line, suppose this is a line, this is resting where at HP, because ये base है ना laptop का, जहाँ पर आपके keys हैं. So this will be as your horizontal plane. So this line or point is actually resting in this particular plane. Means अब आप इसका चाहे यहाँ से elevation देखोगे, so what you find, ये VP में क्या है, यहाँ से इतना दूर है, अभी कहीं पर उठी नहीं है, अभी ना ये VP पे लाइन चिपकी है और ना ही ये HP से ऊपर उठी है. सो आप जब इसका बेस प्लान रेडी करोगे, सो यू विल फाइंड जस्ट दिस लाइन हियर, एंड ऊपर क्या है इसका, एक सेकेंड, ये आप जब इस लाइन को देखोगे तो ये ऐसे आ जाएगा. हाँ, तो ये लाइन ऐसे आ रही है. तो अब आप तो इधर से देख रहे हो, तो ये ऊपर है, ये नीचे चला जाएगा, ये बेस प्लेन. हाँ, ये प्रोजेक्शन होके इधर ही आ जाएगा. तो ये सिंपल इस लाइन पे ही आ जाएगा, बिकॉज अभी अभी क्या है, तो इसका अगला अजब सपोज ये इधर रेस्ट कर रहा है, तो भी हम जब देखेंगे तो ये क्या होगा, ये वीपी पे रेस्ट कर, बट अभी भी वीपी से ना एचपी पे आया है, ना कहीं और आया है. तो मीन्स ना ये इधर जाएगा और ना ये उधर जाएगा, ये अगेन इधर ही रेस्ट करेगा, बिकॉज आप ऊपर से देख रहे हो या नीचे से देख रहे हो, तो एवरीवे इट इज हियर. सो मींस इसका एलिवेशन देखोगे, प्लान देखोगे, दिस विल लाई एंड वन पर्टिकुलर कॉर्नर. बट दी मोमेंट आप इसको थोड़ा सा ले 20, तो फिर ये क्या होगा आपके इसमें यहाँ
So same way, plane बन जाएगा much above and कि जब इस पे क्लिक पे तो ये इधर ऐसे आ जाएगा. So the moment you see here, so you will find one particular line below this level. So and when you see from top, you will find this one particular line. But when you see from particular, if this is a line, it will automatically represent like this. So this is one of the basic. Sir, camera कुछ वैसा हो गया क्या? अच्छा. Okay. This is one of the basic understanding that how you are facing these particular objects. Now suppose what Ram sir have already explained you that suppose this is your horizontal plane. Sorry, this is your horizontal plane. This is your horizontal plane. This is your vertical plane. So if I take this particular duster as an example, so if this is resting at corner, so this was what I was explaining in that particular drawing. But suppose if this duster is parallel to this is duster, this is pure line. So, suppose this is a horizontal line. So this is just parallel to your particular VP and parallel to HP. So this will go smooth, means no any disturbance. But the moment if this particular thing is perpendicular to VP, so see the rotation of this duster. Earlier you were seeing this particular length, but now you will be going to see only one particular point, because earlier the line was like that, but now this is perpendicular to VP. So if this line is perpendicular to VP, so under HP you will see this particular line, but under VP you will see this particular point. But the moment if this particular line now, if I just change one particular angle, suppose like this, so this angle is with VP, so means actually this duster is parallel to HP, but now this angle, because of this 45-degree assumed angle, this particular duster is not perpendicular to VP. So this is actually at an angle of 45-degree. So means like this, there will be 6 to 7 type of different conditions that suppose duster is right now parallel to HP and parallel to VP. So this is the ideal equation. Now, if this is parallel, but according to VP, if this is 45-degree inclined, if this is 45-degree inclined, then you will see this particular 45-degree. And if at HP, if this is inclined, so how this will appear? This will appear like this. Means now this is parallel to VP, but at an angle of angle with HP. Angle with HP. If this will appear like this. हाँ. So आपका एंगल किससे बन रहा है? HP के साथ बन रहा है. So HP के साथ एंगल ऐसा दिखेगा. तो so you will see that this particular duster, if you just go with this particular closer to this particular VP, it will completely stick because this is parallel to VP. But this is at an angle of 35-degree or 30-degree or 45 or 60. Depending upon that, you can draft accordingly. Now there will be some other situation when this particular duster neither perpendicular to HP or neither perpendicular to HP or neither perpendicular to VP. So what will happen? This particular angle may be taking, as Ram sir have already told you, that alpha or theta. Okay. So you will find one particular different angle with VP. Suppose if I assume 30-degree with VP, but with HP also it is 45-degree. So how will this react? Suppose this is your HP and VP. So this particular line will be at an angle of 45-degree. Okay. This will be better. At an angle of, now this particular line, this particular straight line is neither parallel to HP nor parallel to VP nor perpendicular to VP nor perpendicular to HP. Now this is at an angle. So how will this change? Suppose with VP this is making this angle,
So this will appear like this. आप इसको प्लान में देखेंगे तो this is not, this is at one particular angle. But HP में भी क्या होगा, अभी ऐसे उठ जाएगी. So under HP you will see that this is actually making one particular line. So means now with this you have to sketch with some sort of drawings. So that drawing could be like this. Suppose एक वो लाइन है जो यहां से भी एक एंगल बना रही है. मैं थोड़ा सा बोल्ड बना रहा हूं ताकि आपको विजिबल रहे, बस कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए. ये कुछ एंगल बना रही है VP से, तो इसकी एक्चुअली जो लाइन होगी वो ये वाला एंगल होगा, ये डिफरेंट होगा. सपोज ये 30 डिग्री है. सेम वे आपकी जो ये वाली लाइन है ये सपोज 60 डिग्री एंगल बना रही है. ये आपका XY प्लेन है, तो ये आपका कितना हो गया 60 डिग्री. सो कैन यू इमेजिन कि जो ये लाइन VP में जो एंगल बना रही है ये अलग शॉट है, ये अलग है. बिकॉज जब आप इसकी लाइंस को कोरिलेट करोगे सो यू विल फाइंड दैट जब आप इसका प्रोजेक्शन बनाओगे तो इसकी ट्रू लेंथ कैसे आएगी. आप इसको कर्व करोगे यहाँ तक, यहाँ पर कंपास रख के यहाँ पर पॉइंट लगा के ऐसे, फिर आप इसको नीचे प्रोजेक्ट कर दोगे. सपोज मैं थिक लाइन लेके इस तरह से करता हूँ, तो आप उस टाइम पे क्या देखोगे, ये एक्चुअली इसका ये पॉइंट है. तो मींस कोई भी लाइन है अगर एक्चुअल लेंथ उसकी ये है मींस ट्रू लेंथ, बट जब आप उसको थोड़ा सा तिरछा कर दोगे तो ऊपर से वो शॉर्ट हो जाएगी. बट जैसे ही आप उस पर्टिकुलर लाइन को मींस किसी भी एंगल पे रखेंगे तो वो या तो एक्सटेंड हो जाएगी, मींस या तो वो शॉर्ट हो जाएगी या लेंथ बढ़ जाएगी. ये लाइन का एग्जांपल है. देखिए अभी मैं बिल्कुल आपके कैमरे के सामने हूं तो बिल्कुल एग्जैक्ट अगर ये 100 mm है तो 100 है. बट अगर मैं इसको ऐसे तिरछा कर दूंगा तो आप जब ऊपर से देखेंगे तो ये जो 100 mm था ये रह जाएगा 75 mm. 25% रिड्यूस हो जाएगी इसकी एक्चुअल ट्रू लेंथ से जो विजिबल लेंथ है. बट सेम वे जब आप इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ भी और दूसरे एंगल से देखोगे तो हो सकता है कि ये फिर अगेन 75 नहीं तो 70 mm हो जाएगी. तो मींस एक्चुअल ट्रू लेंथ से मतलब ये डिस्टर्ब होगी उसमें. So means keeping in mind that you have you हाँ ठीक है, ठीक है सर. ओके सो okay. So suppose if I'm taking one particular example that line AB is how much 100 mm. बट ये 100 mm है, ये क्या है आपको HP VP का फंडा पता है. एक आपका HP हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक आपका VP वर्टिकल प्लेन. बट HP से अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये HP से ऊपर है, तो क्या लिखा मैंने इसमें अबव. HP से अबव है कितना, सपोज 20 mm. You have to be very peculiar with your dimensions that mm means that should be mm. अब VP से अब ये क्या है, सपोज मैंने इसको VP से ले लिया, VP से फ्रंट में, फ्रंट मीन्स इन फ्रंट बोलेंगे उसको, एंड इन फ्रंट कितना है सपोज 40 mm, जस्ट डबल. So just to understand the particular basic imagination that you have this particular 100 mm length line, but now you have to take above HP as 20 mm and in front of VP as 40 mm. So how you will be going to take? So I can now rub this because this is very easy to recall. 100 mm length, 20 mm above HP and 40 mm in front of VP. So first of all, to just make you clear understanding that what you are going to make. So just make one particular habit that you can sketch before drafting so that whatever you are drafting that is correct. Suppose if this is your particular plane and if I take this particular as a O, so question was line is 100 mm. So you have to take 20 mm above this. So 20 mm above this means अब मैं इस पॉइंट से ऊपर 20 mm आऊंगा, तो ये हो गया 20 mm.
बट वीपी से मैंने कितना बोला है, सपोज इसी लाइन को मैं ऐसे बढ़ाता हूँ, तो इसका अगर पॉइंट से अगर मैं इधर बढ़ता हूँ तो ये कितना आएगा 40। तो मीन्स अब जो आपकी लाइन बनेगी वो इधर से डबल दूरी पे होगी और इधर से थोड़ा सा ऊंचा। तो इधर से कुछ ऐसा लाइन का अपीयरेंस आएगा। मीन्स वो इस बेस प्लेन से ऊपर उठी हुई है और इससे इधर है। तो यहाँ पर ये लाइन ए बी रेस्ट कर रही है। क्लियर? आप इसकी ड्राइंग्स सकते हैं कैसे। ये आपका एक्स प्लेन है, आपने इसको इस तरीके से ओरिजिनेट करा, ये ओ है। तो अब आपको पता है कि आपका ये वीपी प्लेन है, ये एचपी प्लेन है। तो 20 mm यहाँ पर था, तो ये पॉइंट आपने इधर से सेट स्क्वायर से यहाँ पर करा, ये कितना है, ये है आपका 20। और इधर से ये कितना है, जस्ट डबल 40। हाँ ओके ओके, सॉरी 40 इन फ्रंट है, 40 इससे इधर है, तो ये हो जाएगा आपका 40 और 20 ऊपर है, तो ये आपका हो जाएगा 20। ये आपका जो एक्चुअल जो ओरिजिन पॉइंट है उससे ऊपर है। अभी शायद मैंने क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं लिया है ना, मतलब खाली सिचुएशन एक समझाइए। हाँ हाँ सर आप। So it was a very nice explanation, another way of the orthographic projections and how to understand where the point is lying and how we should or how we can think in the different way. जैसे कि आप अभी तक ऑर्थोग्राफिकल मॉडल में देख रहे थे, सर ने उसको लैपटॉप के फॉर्म में एक्सप्लेन किया एंड देन in a very nice way he explained how the HP VP means the base, the top base, the four sides of the cuboid. Okay, we can draw. Okay, अभी तक हमने जो बात करी केवल HP और VP की बात करी थी, तो आई थिंक आपका जो साइड व्यू है इट विल टेक टाइम। हम लोग जब प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स शुरू करेंगे देन विल गिव यू द कॉन्सेप्ट ऑफ द साइड व्यू। राइट नाउ वी जस्ट नो द HP एंड VP, जैसे कि आप प्लान और एलिवेशन स्ट्रेट वे में जो है आप समझ लो। और अभी जो हमने किया था उसको कंटिन्यू करते हैं। द कंडीशन इज, हम लोगों ने 3 कंडीशन कर ली है स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन, लेट मी राइट डाउन लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू HP एंड पैरेलल टू VP, डन। का मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, phi is equal to 0 degree. Straight line 80 mm long and A is 20 mm above and 30 mm in front. ये कॉमन है आप किसी भी कंडीशन में, स्ट्रेट लाइन 80 mm long, 20 mm above and 30 mm in front. Then condition number 1 is parallel to HP and parallel to VP. क्या बनाया था हमने? हमने बनाया ये A dash, B dash, A, B means
true length in elevation, true length in plan. There is no change in the length. There is no change in the length. Why? Because this is parallel to HP and parallel to, किसी भी प्लेन के पैरेलल अगर है तो ऑब्वियसली वहां पर जो आपका वो आएगा लेंथ, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. ठीक है. देन सेकंड कंडीशन, लाइन इज परपेंडिकुलर टू HP, हमने जो किया, एंड पैरेलल टू VP. वी हैव ऑलरेडी डन इट. ठीक है. इस कंडीशन में हमने क्या किया, इस कंडीशन में जो हमने बनाया वो बनाया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 20 mm above and 30 mm in front. इतना तो कॉमन रहा, A dash A. Then 80 mm perpendicular. So this angle is 90 degrees. तो यहां से लेकर यहां तक 80 mm, और यहां पर क्या आ गया, एंड B. क्या फर्क आ गया यहां पर? When the line is perpendicular to HP, when the line is perpendicular to HP, तो उसका जो प्लान है वो कन्वर्ट हो गया एक पॉइंट में. यहां पर भी ये देखिए क्या था, 80 mm. अब यहां से लाइन ने एंगल बनाना शुरू किया, लाइन ने यहां एंगल बनाना शुरू किया. ओके. जब लाइन ने यहां एंगल बनाया, यहां से यहां आया, तो लेंथ यहां शॉर्टन हो गई, कम हो गई, कितनी हो गई. ठीक. यहां पर और आ गया, और एंगल बढ़ गया, और शॉर्टन हो गई. और जब ये परपेंडिकुलर हो गया, तो आपका ये पॉइंट B यहां से यहां पर शिफ्ट हुआ. पहले सपोज B1, तो B2 कह दीजिए, और फाइनली जब ये परपेंडिकुलर हो गई लाइन, तो यहीं पर B आ गया, और ये आपकी कंडीशन. ठीक है. प्रैक्टिकली अगर हम देखें क्या हुआ, तो क्या हुआ, इट इज लाइक दिस. line was parallel to HP and VP, then inclined to HP, again inclined to HP, and now this is perpendicular to HP. Line was parallel to HP, inclined to HP, perpendicular to HP. जैसे ही यहां पर ये चेंजेस आ रहे हैं, तो इसका जो टॉप व्यू है क्या नजर आ रहा है, यहां पर अगर हम देखें वही लेंथ दिखाई दे रही है. अब HP के संग एंगल बना देता हूं, ये कंडीशन. यहां पर क्या हुआ था, ये यहां से छोटी हो गई लेंथ. अगर आप देखें लेंथ यहां पर जो पूरी दिखाई दे रही थी, इतनी दिखाई दे रही थी, वो लेंथ जैसे ही एंगल बनेगा वो छोटी हो जाएगी. और जैसे ही परपेंडिकुलर हुआ, एक स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट में कन्वर्ट हो गया. दिस व्हाट we were understanding with the different models. Then third condition, perpendicular to VP and parallel to HP. Second was perpendicular to HP, parallel to VP. Third is perpendicular to VP, parallel to HP. इसमें क्या कंडीशन आ जाएगी? अभी तक हमने ये किया. अब किसके परपेंडिकुलर है, VP के. अगर हम इसको यहां बनाए XY, बेसिक कंडीशन 20 above, 30 mm in front, above, 30 mm in front, A dash A, then it is perpendicular to VP. तो ये हमारे थर्ड, ये तीन कंडीशन हमने अभी और कर ली, और ये आ गया आपका B, ये आ गया B डैश. इसमें भी वही, जब ये लाइन यहां पर थी पहले, तो इसकी लंबाई दिखाई दे रही थी मेरे को यहां पर, कैसे, यहां पर दिखाई दे रही थी A डैश B डैश, जब ये पैरेलल थी. अब यहां पर एंगल बना, यहां से लेकर यहां तक एंगल चेंज होता गया, तो यहां पर जो लेंथ है वो शॉर्टन होती है, और यहां पर आके कन्वर्ट हो गई एक पॉइंट पे. ठीक है. और फाइनली आपका जो प्रोजेक्शन बना वो ये बना. तो अब हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन नंबर 4 वो ये ले रहे हैं, व्हेन द लाइन इज इंक्लाइंड एंड पैरेलल टू VP.
पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स ले लिया, परपेंडिकुलर टू वीपी एंड एचपी ले लिया। अब क्या कर रहे हैं, लाइन इंक्लाइन and parallel. Rest is same, straight line from A20 above, HP 30. तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया, ट्रू लेंथ आ गई हमारे पास 80 mm एंड A 20 एंड 30 HP और VP लिखूं तो समझ में आता है कि HP से हमेशा अबव होगा और VP से इन फ्रंट होगा। फिर उसके बाद लाइन इज मेकिंग 45 डिग्रीज, मतलब 45 डिग्रीज मींस थीटा इज गिवन 45 डिग्रीज, थीटा इज गिवन 45 डिग्री and is parallel to VP means given 0 degrees. Phi is given 0 degrees. So these are the inputs और इसको help से हम ये, what is the condition now? The line is parallel to VP and inclined to HP. Line is parallel to VP and inclined to HP. Let's understand with the model again. ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू में फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर हम इंडिविजुअली लें और बिल्कुल आपको ऑर्थोग्राफिकली लें, इसको प्लेस करें, ये अगर हम कर रहे हैं तो ये आपका जो है आइसोमेट्रिक व्यू है, क्योंकि आपको ये लेंथ दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है और ये तीन डायमेंशन दिखाई दे रहे हैं आपको। अगर आप बिल्कुल इसको परपेंडिकुलर कर दें, ऑर्थोग्राफिक हो गया। दिस इज द एक्सिस, यू कैन से एचपी, दिस इज वीपी। अब इसको अगर हम सामने देखें तो आपको ये नजर आता है, लाइन इज लाइक दिस, प्रोजेक्शन, तो it is inclined to HP, it is inclined to HP, it is inclined to HP, it is inclined to HP and parallel to VP. इसके पैरेलल है और HP से इंक्लाइंड। तो इसका प्लेसमेंट कैसे करेंगे? सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, 20 mm अबव, तो सबसे पहले 20 mm अबव यहां से आ गए एंड 30 mm इन फ्रंट, तो यहां पर आपका पॉइंट फिक्स हो गया, दिस इज द पॉइंट। अब उसके बाद कहता है लाइन इज मेकिंग 45 degrees. Right now it is at 0 degrees. Now you give an angle, it is 45 degrees. Correct? और संग में मेरे को क्या रखना है? VP के पैरेलल रखना है। Keep it parallel to VP and inclined at 45 degrees. ठीक है? तो क्या प्रोजेक्शन आया? जो आपकी टोटल लेंथ है वो यहां पर ये नजर आने लगी। आपको जो लेंथ है वो ये नजर आने लग गई। क्या? 20 mm अबव, फिर उसके बाद लेंथ। प्लान में क्या नजर आएगा? जब ये ट्रू लेंथ था तो ऐसे था, अब जब ये इसमें इंक्लाइंड हो गया तो ये शॉर्टन हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेट्स ड्रॉ इट। तो एग्जैक्टली क्या आएगा वो आपको पता लग जाएगा। एक्स वाई लाइन करेक्ट। अब इसके बाद क्या चाहिए? प्लान आ गया। ओके, अब एलिवेशन के संग क्या बनता है? हमेशा थीटा बनता है। एलिवेशन के संग क्या बनता है? थीटा गिवन, यस। कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। इट इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्रीज टू एचपी। तो यहां आप 45 डिग्री से आप पहले लिया 20, यहां से लिया 38, तो ये क्या आ गया आपकी एलिवेशन लेंथ mm। अब इस प्रोजेक्शन यहां से करना है, बिकॉज फाई इज गिवन 0 डिग्रीज। तो जो प्लान है वो so this is your elevation length
This is your plan length AB. करेक्ट? ये क्या हुआ? HP के साथ जब HP के संग एंगल बना, HP के संग जब एंगल बना तो ट्रू लेंथ आती रही, वो आपको छोटी हो गई। करेक्ट? कैसे हो गया? जब ये मतलब अरे दोनों जब दोनों पैरेलल लेकिन सी से बना तो आपको एलिवेशन में तो वही लेंथ दिखती रही, एलिवेशन में तो वही लेंथ दिखती रही, बट प्लान में वो शॉर्टन होती चली गई। जो ये थी यहां 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 और फाइनली अगर एक परपेंडिकुलर हो गया तो पॉइंट। तो दिस इज योर कंडीशन नंबर व्हेन द लाइन इज मेकिंग angle with HP and parallel to VP. Correct? Now condition number 5. Condition number 5 is 5 degree to VP. VP and parallel to HP. जैसे ही किसी चीज के पैरेलल क्या वैल्यू आ गई? 0 वैल्यू जितना भी इंक्लिनेशन है वो आ। कंडीशन इज सेम, a line AB 80 mm long, its end A is 20 mm above and 30 mm in front, is inclined at 45 degrees to VP and parallel to HP. Now let us understand like this. इस तरीके से समझते हैं इसको कि आप जो लाइन है मैं सबसे पहले VP में रख देता हूं। नाउ इसका मतलब ये क्या है? इसके पैरेलल है, इसके ये पैरेलल है, इसमें रखा हुआ है मतलब इट इज पैरेलल। नाउ इट इज मेकिंग एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है? तो ये जो लेंथ हमारी यहां दिखाई दे रही थी, जब मैं जैसे जैसे एंगल बना रहा हूं आप देख पाएंगे कि ये लेंथ कम होती जा रही, कम होती जा रही, और जैसे ही परपेंडिकुलर हुआ एक पॉइंट में कन्वर्ट हो। जब ये पैरेलल थी तो यहां था, जब इसने एंगल बनाया तो कम हो गया। ओके, अब इसका प्लेसमेंट करते हैं। एंड ए इज 20 mm above, एंड ए, सपोज दिस इज एंड ए इज 20 mm above and 30 mm in front। तो स्पेस में एंड ए की पोजीशन फिक्स हो गई। अब लाइन ने एंगल बनाया वीपी के साथ, लाइन ने एंगल बनाया वीपी के साथ। ठीक है? क्या मैं ठीक बना रहा हूं? लाइन ने एंगल बनाया वीपी के साथ। नहीं, मैंने किसके संग एंगल बना दिया? एचपी के साथ। ये गलत कर दिया आपने। क्या करना था? आपने एंगल बनाना था वीपी के साथ। ओके? A is 20 above, 30 in front. Now the line is making angle with VP and parallel to HP. देखिए HP के तो पैरेलल है अभी भी, है ना? एंड VP से इंक्लाइन। बात समझ में आ गई? तो क्या हुआ सब? कैसे नजर आएगा आपको? ये जो ट्रू लेंथ है वो कहां नजर आएगी? यू कैन सी द ट्रू लेंथ इन प्लान, यू कैन सी द ट्रू लेंथ इन प्लान, एंड जो एलिवेशन में नजर आएगा वो अपनी लंबाई में कमी आ जाएगी उसके, है ना? इट विल बी शॉर्टन इन द लेंथ। करेक्ट? लेट्स ड्रॉ इट, तो आपको ये समझ में आएगा। बिल्कुल इसका रिवर्स से पहले किया था। एंड ए इज 20 अबव एंड 30 इन फ्रंट, ए डैश ए। दोबारा से मैं वहीं पे खड़ा हूं कि मेरे पास प्लान भी है, एलिवेशन भी है। आई हैव प्लान, आई हैव एलिवेशन, आई हैव द ट्रू लेंथ, आई हैव थीटा is equal to 0 degrees and phi is equal to 45 degrees। मुझे मालूम है कि प्लान के संग phi बनता है और एलिवेशन के संग थीटा बनता है। ट्रू लेंथ मेरे को मालूम है 80 है। करेक्ट? क्या बनाएंगे हम? जो वैल्यू दिया है 45, और थीटा से क्या बनाएंगे? 0 डिग्रीज पे लाइन। यहां से कितने पे बनाएंगे? 45 पे लाइन। कट करेंगे यहां से 80। वाई? बिकॉज इट इज द ट्रू लेंथ। तो यहां से लेकर मैंने ट्रू लेंथ कट किया। क्यों लेंथ लूंगा? ये पैरेलल,
इट इज पैरेलल, किसके पैरेलल? पी के, पी के किसके है? पी, 0 डिग्रीज दिया। तो यहां पर आपका जो एंगल है फाई वो बन गया प्लान के साथ 80, और आपको जो नजर आया वो एलिवेशन में नजर आया एक शॉर्टन लेंथ ए डैश, और ये आ गया ए बी। तो आपका जो फाई आ गया वो आ गया 45 डिग्री, थीटा आ गया वो आ गया 0 डिग्री। ये कहलाएगा प्लान लेंथ, दिस इज प्लान लेंथ, एंड ये कहलाएगा एलिवेशन। एलिवेशन। अब एक चीज को यहां पर ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए, यू आर गेटिंग a very important point here. If true length is in plan, then the line parallel to XY line will be the elevation line. If there is a true length in plan, if there is a true length in plan, the line which is parallel to XY line will be your elevation line. Correct? इसका रिवर्स देखिए. If there is a true length elevation, then the line parallel to line will be your line. का क्या मतलब हुआ? अगर मेरा एलिवेशन में ट्रू लेंथ है तो प्लान लेंथ मिल जाएगी, अगर प्लान में ट्रू लेंथ है तो एलिवेशन मिल जाएगी। क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि आपका जो दूसरा प्रोजेक्शन है वो एक्स वाई लाइन के पैरेलल होना चाहिए। जो पैरेलल में आपके डिस्टेंस मिलेगा उसको हम कहेंगे प्लान लेंथ या एलिवेशन लेंथ। अब इसको दोनों को मिला देता हूं मैं और एक कंडीशन बनाते हैं, द लाइन इज इंक्लाइंड एट 45 degrees to HP, 45 degrees to HP, and 30 degrees to VP. Line is inclined at 45 degrees to HP and 30 degrees to VP. Correct? This combination is when the line is inclined to both the planes. When the line is inclined to both the planes. अब वो HP से भी इंक्लाइंड है, VP से भी इंक्लाइंड है, तो अब ये कैसे होगा इसको थोड़ा सा समझते हैं। बहुत आसान है, ये सबसे आसान यही है। ये देखिए आपका जो लाइन है पैरेलल कर दिया मैंने। सबसे पहले इट इज पैरेलल टू HP एंड VP, लाइन इज पैरेलल टू HP एंड VP, ठीक है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इन अदर वे। Line is parallel to HP and VP. First of all, line is inclined parallel to HP and VP. ये कंडीशन ली, line is parallel to HP and VP, ठीक है। Okay. Now, line is inclined to HP. Line is inclined to HP. Correct? Line is inclined to HP. ये आ गई कंडीशन। Now, line is inclined to VP also. Okay, let me explain you. Suppose this blackboard is VP and this ground is HP. आपका line, आपका जो line है ऐसे समझिए, this is the line is parallel to HP and VP both. Is parallel to HP and VP both. ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, दोनों के पैरेलल। अब किसने HP के संग एंगल बनाया? This is the angle made with HP. ओके, ठीक है, बात ठीक है, समझ में आ गई? HP के संग एंगल बन गया। अब क्या हुआ? लाइन ने VP के संग भी एंगल बना दिया।
करेक्ट? क्या कंडीशन आ गई साहब, फिर समझ लीजिए, पैरेलल टू एचपी, सॉरी इंक्लाइन टू एचपी। ओके, अब जैसे ही यहां पर ये पॉइंट फिक्स हो गया हमारा, क्योंकि इतना अबव है, और जैसे ही एचपी से एंगल बनाया फिक्स हो गया हमारा, करेक्ट? बट कंडीशन ये है कि ये वीपी से भी एंगल बना रहा है, तो ये अभी वीपी के राइट नाउ इट इज वीपी टू वीपी, नाउ दिस इज मेकिंग एंगल विद वीपी ऑल्सो। तो इसका मतलब प्लेसमेंट क्या हुआ लाइन का, दो बार हुआ, लाइन का प्लेसमेंट दो बार हो गया, एक बार एच से एंगल और दूसरी बार वीपी से एंगल। इसका मतलब मेरे को दो एंगल्स मिलेंगे, इसका मतलब मेरे को दो एंगल्स मिलेंगे, एक मिलेगा एचपी के साथ कि रियल एंगल होगा, करेक्ट, और दूसरा मिलेगा वीपी के साथ, वो भी रियल एंगल होगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एचपी वो एपरेंट एंगल हो जाएगा। करेक्ट? बात समझ में आ गई? तो कंडीशनिंग ये हो गई, द लाइन इज मेकिंग एंगल विद एचपी एंड देन लाइन इज मेकिंग एंगल विद बीपी। तो उस टाइम पे जो लाइन की ये कंडीशन है, फाइनल प्लान एंड एलिवेशन, इसका मेरे को बनाना है। ठीक है? ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये किस तरीके से बन सकता है। इसमें मैं दोनों ही कंडीशंस को इस्तेमाल करूंगा, जो इंक्लाइंड है एचपी के और इंक्लाइंड है वीपी के, और पैरेलल है ऑपोजिट साइड। ओके, द गिवन इज line is 20 mm above, a point is 20 mm above and 30 mm in front, above and in front. Line is making theta is equal to 45, phi is equal to 30. These are the real angles. These are the real angles. थीटा किसके संग बनता है? एलिवेशन के संग। फाई किसके संग बनता है? प्लान के संग। करेक्ट? थीटा किसके संग बनता है? एलिवेशन के संग। फाई किसके संग बनता है? प्लान के संग। थीटा कितना दिया हुआ है हमको? थीटा कितना दिया हुआ है? 45 डिग्रीज। 45 डिग्री, यहां से 45 डिग्रीज इक्वल टू ट्रू लेंथ 80। अब यहां ये डैश है नहीं। नाउ दिस इज नॉट द फाइनल एलिवेशन ऑफ एंड बी। व्हाई? बिकॉज द लाइन विल मेक एंगल विद वीपी ऑल्सो। अभी क्या हुआ साहब? अभी ये हुआ, लाइन ने एचपी के एंगल बनाया ये 45 डिग्री। क्या बी डैश? नो, फाइनल बी डैश क्यों नहीं है ये? क्योंकि अभी जो लाइन है वो एंगल बनाएगी वीपी के साथ ही। वो क्या हुआ साहब? ये एंगल बनेगा। करेक्ट? तो इसका तो जो बी है, अब वो कोई भी वीपी के संग बनाए, बट एचपी से हमेशा प्लेन इमेजिन कर लू मैं, देयर इज वो प्लेन को हमें टच करता है, इट विल टच दैट प्लेन। करेक्ट? बना तो ये पॉइंट बी फिक्स हो गया कि वो यहां पर है। अब अगर मैं इसे एंगल बनाता रहूं, चाहे वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, वो हमेशा प्लेन जो है, आपका जो एंड है, वो इस प्लेन में, इस लाइन पे हमेशा। तो मैंने क्या किया? क्या जिसकी आपका प्लेन, और इसको कह दिया B0 डैश या B1 डैश, A डैश B1 डैश, बिकॉज दिस इज नॉट द फाइनल B डैश, दिस इज नॉट द फाइनल B डैश। ओके, अब आगे यहां पर दिया हुआ है फाई। फाई इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। आपने यहां से 80 लिया था, अब यहां पे 30 डिग्रीज लेते हुए 80 ले लीजिए, 30 डिग्रीज लेते हुए 80 ले लीजिए। ये क्या है? ट्रू लेंथ इन प्लान, ट्रू लेंथ इन प्लान। ये क्या थी? ट्रू लेंथ इन एलिवेशन। ये आ गया आपका B1। क्या ये फाइनल B है? नहीं, इसलिए इसको हमने कह दिया B1। उसी कॉन्सेप्ट से जो हमारा B है वो इस लोकस में कहीं आएगा। ओके, जिस कॉन्सेप्ट से डैश लोकस में डैश आएगा, उसी कॉन्सेप्ट से B1 के लोकस पे कहीं B आएगा। नाउ इफ यू सी
Now, if you see this, elevation to up, true length in giving span length, क्या कंडीशन है? जब वो XY के पैरेलल, जब वो XY लाइन के पैरेलल हो. ओके, अब आप यहां देखो इसको. Now you see here, true length in elevation will give you the plan length. प्लान कहां है? ये रहा ए. प्लान कहां है? ये रहा. तो अगर मैं ए से एक लाइन पैरेलल XY लाइन के ड्रॉ कर दूं और यहां से इसका प्रोजेक्शन ले लूं, तो मेरे को ये जो लेंथ मिली ये किसके बराबर मिल गई? प्लान लेंथ. तो दिस विल बी योर प्लान लेंथ. दिस विल बी योर प्लान लेंथ. प्लान कहां होना चाहिए? B1 की लाइन में, लोकस ऑफ द B1. कहां होना चाहिए? लोकस ऑफ द B1. तो A एज अ सेंटर, प्लान लेंथ एज अ रेडियस रोटेटेड. जहां पर भी कट होगा वो आ जाएगा एंड B. Join A with B. So this is the final plan of the line. क्या किया? I repeat the step. True length in elevation will give you the plan length. Plan length क्या है? जो कि XY लाइन के पैरेलल लाइन है. कहां? जहां पर उसका प्लान लाई कर रहा है. कहां प्लान लाई कर रहा है? A. क्यों? क्योंकि A डैश ये है तो उसका प्लान क्या होगा? A. उससे पैरेलल लाइन ड्रॉ किया. So this is your plan length. With the compass and a radius, rotate. Wherever it will intersect the B1 locus line will give you B. Okay, this is the rotation. अब इसका रिवर्स सोचिए. This is the true length in elevation. True length in elevation. इससे क्या मिलना चाहिए? Sorry, true length in plan. I am really sorry. ये आप ध्यान दीजिए. ये क्या है? A B1. This is true length in plan. इससे क्या मिलना चाहिए? एलिवेशन लेंथ. एलिवेशन कहां है? ये रहा A डैश. तो अगर मैं इसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं और इस लाइन को लेकर जाऊं तो यहां पर जो पॉइंट मिलेगा, दिस इज योर एलिवेशन लेंथ. यू कैन सी दिस हियर. प्लान ट्रू लेंथ इज गिविंग यू द एलिवेशन. प्लान ट्रू लेंथ इज गिविंग यू द एलिवेशन. ओके, तो अगर मैं दोबारा से अपने सवाल पे आ जाऊं यहां पर, तो ये मेरा प्लान ट्रू लेंथ है. इससे मेरे को ये एलिवेशन लेंथ मिला. एलिवेशन A डैश मालूम है, मेरे को B डैश निकालना है. एलिवेशन लेंथ लेकर इतना रोटेट ये कट करेगा. दैट विल बी फॉर B डैश. ज्वाइन A डैश एंड B डैश. दैट इज एलिवेशन ऑफ द लाइन. दिस इज द फाइनल प्लान ऑफ द लाइन. अब ये कैसे लगे पता कि ये बिल्कुल ठीक बना है? The condition is given that the plan and elevation should be in a straight line. तो आपका B dash should be in a straight line. It should be a straight line. ये होना ही चाहिए. करेक्ट. तो हमने इससे यहां से लेकर प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे 90 डिग्रीज पे और वो आपका जो B आया है वो आपके उसके अलाइन आएगा. करेक्ट. अब यहां पर आ जाती है बात कि एक लाइन और हो गई तो दो एंगल्स और डेवलप हो गए. These are the apparent angles. These are the आभासी कोण हैं. These are the apparent angles. These are not the real angles. Why these are the apparent angles? Because second time जो placement हुआ है लाइन का उससे create हुआ. First time आपने create किया था HP से, वो real दिखाई दे रहा था. VP से real दिखाई दे रहा था. But because क्योंकि HP के respectively VP और VP के respectively HP दोनों में जो आपका जो placement displacement हुआ उसकी वजह से ये एंगल था. So this angle is known as alpha and this angle is known as beta. The plan length making angle with XY is alpha and the elevation length making angle with XY is beta. तो अगर एक स्ट्रेट लाइन को हम हीट प्रोजेक्शन कहें कि क्या है तो हमको ये चीज निकल के आ जाती है. ट्रू लेंथ थीटा, फाई, अल्फा, बीटा. अब इसमें जो रह गया हॉरिजॉन्टल ट्रेस, वर्टिकल ट्रेस, ये अभी चीजें रह गई. ये आपको नेक्स्ट उस पे क्लियर करेंगे. तो आपके ये 5 चीजें आ गई. ट्रू लेंथ, प्लान लेंथ, एक चीज इसमें 2 और रह गई. प्लान लेंथ पता लग गई, एलिवेशन लेंथ. 7 चीजें आ गई. प्लान लेंथ, एलिवेशन लेंथ, ट्रू लेंथ.
थीटा फाई अल्फा बीटा 1 2 3 4 5 6 7 HTVT, अगर ये हमारे 9 पॉइंट्स पता है हमको निकालने आते हैं, तो हमारा स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन हमको आता है। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप प्लान लेंथ निकाल सकते हैं? यू कैन से यस आई कैन। कि प्लान लेंथ वो है अगर कोई लाइन XY लाइन के पैरेलल है तो एलिवेशन में जो लाइन मिलेगी वो ट्रू लेंथ मिलेगी। प्लान लेंथ क्या है? व्हाट इज प्लान लेंथ? ये वो लेंथ है जबकि मैं इसको XY लाइन के पैरेलल रखूं तो एलिवेशन में जो लेंथ मिलेगी वो ट्रू लेंथ। व्हाट इज एलिवेशन लेंथ? जब मैं प्लान एलिवेशन लेंथ को XY लाइन के पैरेलल रखूं तो जो प्लान में लेंथ मिलेगी वो ट्रू लेंथ। नाउ व्हाट इज अ प्लान लेंथ? अगर आपसे कहा जाए प्लान लेंथ कैसे निकालनी है, तब आप क्या देखेंगे? प्लान लेंथ निकालने के लिए आप ये देखेंगे, द ट्रू लेंथ इन एलिवेशन विल गिव यू प्लान लेंथ। द कंडीशन इज इट शुड बी पैरेलल टू XY। रिवर्स है, वाइस वर्सा है। एलिवेशन ट्रू लेंथ विल गिव यू प्लान लेंथ, प्लान लेंथ विल गिव यू एलिवेशन ट्रू लेंथ। दोनों सोचिए, एलिवेशन ट्रू लेंथ इज गिविंग यू प्लान लेंथ, क्या कंडीशन है कि ये पैरेलल होनी चाहिए। का रिवर्स सोचिए कि मेरी प्लान लेंथ पैरेलल है तो उससे मेरे को एलिवेशन की ट्रू लेंथ मिल जाएगी। करेक्ट। अब दूसरा देखिए, एलिवेशन लेंथ इज पैरेलल टू XY लाइन, देन आई एम गेटिंग द ट्रू लेंथ इन प्लान। करेक्ट। इसका रिवर्स सोचिए, प्लान लेंथ में अगर मेरे को ट्रू लेंथ पता है तो मेरे को एलिवेशन लेंथ मिल जाएगी। ओके, अब ट्रू लेंथ एलिवेशन कैसे मिले? उसके लिए मेरे को क्या चाहिए? ट्रू लेंथ एलिवेशन के लिए मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए थीटा एंगल। अगर कहीं पर भी थीटा एंगल दिया है, थीटा एंगल अगर दिया है तो आपको ट्रू लेंथ मिल जाएगी। करेक्ट। अगर आपको प्लान लेंथ दिया है और थीटा एंगल दिया है तो ट्रू लेंथ मिल जाएगी। आप प्लान को पैरेलल बना दीजिए और 45 जो एंगल दिया उसमें बनाते चले जाइए, इसका प्रोजेक्शन लीजिए, यू विल गेट द ट्रू लेंथ। करेक्ट। तो इसका मतलब आई कैन कैलकुलेट थीटा इफ आई नो प्लान लेंथ एंड ट्रू लेंथ। तो तीन कंडीशन आपके, तीन इनपुट्स हो गए, प्लान लेंथ, थीटा, लेंथ। ये तीनों में से कोई भी एक मिसिंग है, यू कैन डिटरमाइन। थीटा मिसिंग है, मेरे को लेंथ पता है, प्लान लेंथ पता है। अब क्या करें साहब? प्लान को मैंने पैरेलल करके बना दिया और उससे पैरेलल कट कर दिया, पर भी इंक्लिनेशन आया वो थीटा मिल गया, बेसिक। अब मेरा ट्रू लेंथ मिसिंग है, मेरे को थीटा पता है, प्लान लेंथ पता है। करेक्ट। तो आप क्या करेंगे? आपने थीटा पे एंगल बनाया, प्लान लेंथ से पैरेलल किया तो ट्रू लेंथ मिल गया। थर्ड, प्लान लेंथ मिसिंग है, आपको ट्रू लेंथ पता है, थीटा पता है, वो बना, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किया तो आपको प्लान लेंथ मिल गया। तो यू कैन अप्लाई दीज कंडीशंस टू गेट एनीथिंग। प्लान लेंथ निकल सकता है कैसे? ट्रू लेंथ और थीटा पता है। एलिवेशन लेंथ निकल सकता है कैसे? फाई और ट्रू लेंथ पता है। थीटा निकल सकता है जब मेरे को प्लान लेंथ एंड ट्रू लेंथ पता है। फाई निकल सकता है जब मेरे को एलिवेशन लेंथ, ट्रू लेंथ पता है। अल्फा एंड बीटा निकल सकता है जब मेरे को ये चीजें पता है। तो दीज आर द total 7 things which we should know how to get. These are the 7 things. अभी HT और VT की बात नहीं करी हमने, इसलिए ये आपकी जो चीजें हैं, प्लान लेंथ, एलिवेशन लेंथ, ट्रू लेंथ, थीटा, फाई, अल्फा एंड बीटा। तो अगर आप इसको रिवाइज करेंगे डाउनलोड करके, जो लेक्चर आज का है, कंबाइन करेंगे जो आपको आज लेक्चर दिया है प्रोफेसर द्विवेदी जी ने और जो आपके टीचर हैं उन्होंने, तो आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस क्या है, स्ट्रेट लाइन की कंडीशंस क्या हैं और किस तरीके से डिटरमाइन करना है, वो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। अगर तब भी आपका जो है कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं तो आप मेल कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पे, एंड आई विल रिक्वेस्ट रॉबिन सर दैट ही कैन आल्सो टेल यू हिज मेल आईडी। सर आप वो भी लिख, यू कैन राइट डाउन द मेल आईडी so that students can note it down, और आपको भी मेल कर ये
Note down another email ID. Okay, so you can send your queries on this mail ID also. Any branch, because the teacher is same, course is same. Don't worry about. All right. Thank you very much.